Good morning, student of class 6. I am a computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter, chapter number 7, Introduction to HTML. Okay, chapter number 7, Introduction to HTML. As all of you know that our second term examination is going to start from December 1, and this is the syllabus for second term examination. Okay, so chapter number 1, categories of computer and computer language. Chapter number 5, presentation, visual effects. Chapter number 6, scratch programming, introduction to game creation. And chapter number 7, introduction to HTML. I have already completed chapter number 1, 5 and 6. Today I am going to complete the chapter number 7, introduction to HTML. So, and I want to say all of you that please read the book very carefully. Okay, read each and every line very carefully, because uh, as all of you know that second term exam is also based on MCQ question answer, so all of you have to read the book very carefully. Okay, so move on to the topic. Here you can see World Wide Web. Okay, so World Wide Web, or just a www, consists of public websites connected globally, including computers and cell phones that are currently accessing any web content. It is used HTML. HTML means hypertext markup language, and HTTP means hypertext transfer protocol, and encompasses the web server and web browser. It is simple terms that the www is a way to exchanging information between computer to the internet, tying them together into a vast collection of interactive multimedia resource. बेसिकली www क्या होता है कि जो पब्लिकली वेबसाइट कनेक्टेड है ग्लोबली, बहुत सारा वेबसाइट एक साथ कनेक्टेड है। हम लोग कुछ भी हम लोग कहीं किसी भी देश का हो गया, कोई भी वेबसाइट हम लोग www के ज़रिए हम लोग ढूंढ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड www किस चीज़ से यूज़ होता है? HTML से यूज़ होता है। ओके, जो भी वेब पेजेस होगा वो HTML पेज है। ओके, HTML पेज मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जो प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो है HTTP। हम लोग देखेंगे कि www से पहले जब भी कोई भी वेब एड्रेस सर्च करेंगे वहाँ पे HTTP लिखा होता है, HTTP लिखा होता है। अभी तो बहुत ही सिक्योर हो गया था, HTTPS भी लिखा होता है। ओके, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज है basically the web consists of following components: a personal computer, this is a computer that has internet access। जो हम लोग कभी भी अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग के पास एक कंप्यूटर रहना होता है और उसको इंटरनेट एक्सेस चाहिए उसको। ओके, ये वेब ब्राउज़र जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी वेब पेज को हम लोग ढूंढ सकते हैं। विदाउट वेब ब्राउज़र वी कैन नॉट सर्फिंग एनी kind of websites। Okay, so it is a software installed on the computer which helps you to browse the internet। Next is an internet connection, it is provided by an ISP। ISP means internet service provider। Okay, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, ये सब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। ओके, कनेक्ट यू टू द इंटरनेट टू रीच एनी वेबसाइट, हम लोग उसके ज़रिए ही कोई ना कोई वेबसाइट हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज a web server, this is the computer on which a website is hosted। Okay, next is router or switches, there are the combination of softwares and hardware that take your request and passes it the appropriate web servers। नेक्स्ट इज द वेब इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मीन्स हम लोग अगर कोई भी हम लोग घर पे बैठ के अगर कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो हम लोग क्या हुए, हम लोग क्लाइंट्स हुए, हम लोग कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं और जहाँ से वो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग सर्वर बोलेंगे। ओके, सो योर कंप्यूटर इज द your computer is the client and the remote computers that store electronic files are the server। Okay, every web server that is connected to internet is giving a unique address made up a series of four numbers between 0 to 256 and separated by the periods, for example 68.178.157.132। okay, each machine also has a unique identity known as IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, जो नंबर सिस्टम देख रहे हैं 68.170
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस बोलेंगे। और हर एक कंप्यूटर का, हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सबका एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। Next is hypertext markup language. HTML is a native language developing web pages. Hypertext is an enriched type of text which supports multimedia and links. Okay, so this is called HTML. Next is hypertext transfer protocol. This is a set of rules used by the transfer hypertext document. Okay, जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग रूल्स बोलेंगे. ओके, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर hypertext documents. Standard web address such as http dot www pearson.in, this is called a web address. Okay, this is called a URL, and here the prefix is http indicates the protocol. Okay, next is URL, uniform resource locator. It is used to specify address world wide web. A URL is a fundamental network identification for any resource available on the web. यूआरएल में सबका जो एक जैसे कि कोई भी एक यूनिक एड्रेस होता है, कोई हम लोगों का जैसे कि घर हो गया, उसका एक यूनिक एड्रेस है, उसी तरह से हर एक वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है. ओके, उसी एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं. ओके, यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, इट इज़ यूनिक इन नेचर. नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मैंने पहले ही बोला, ISP आर द कंपनीज हु प्रोवाइड द सर्विस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन टू कनेक्टेड टू द वेब. ओके, जो कंपनीज हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है उसको हम लोग ISP बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल्स है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, ओके, जियो हो गया. Next is hyperlink. A hyperlink or simply is a link is a selectable elements of hypertext document server and as an access point to the other page. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक वेब पेजेस के अंदर दूसरा एक क्लिक का बटन हो गया, कोई भी एक दूसरे पेज पे जाने के लिए कोई लिंक हो गया, उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं. ओके, typically you click the hyperlink to access the link resource. Once the page has loaded, move your mouse pointer over different areas on the page. Your cursor will be changed from arrow to hand with a pointer finger when it is over the hyperlink. Okay, that means जब भी हम लोग उसके ऊपर ले जाएंगे, जो माउस पॉइंटर है वो चेंज होके फिंगर हो जाएगा. ओके, उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, और उसको क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरे किसी वेब पेज पे हम लोग चले जाएंगे. नेक्स्ट इज web server. A web server can be referred to either a hardware or a software that helps to deliver the content that can be accessed through the internet. The primary function of the web browser is delivered web pages to request to the clients. That means web server क्या होता है, हमने पहले ही बोला है कि हम लोग जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, हम लोग कोई भी एक टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, जो हम लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो हम लोग क्या हुए, क्लाइंट हुए, और जहाँ से वो रिक्वेस्ट आ रहा है, जो रिजल्ट वहाँ से आ रहा है, उसको हम लोग वेब सर्वर बोलेंगे. ओके, here you can see the example of web server are Apache HTTP server, Microsoft Internet Information Server service. Okay, these are the web servers. Next is web browser. Web browser मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि web browser is a computer program that used to accessing web address, websites or information on the network on www. हम लोग कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेब ब्राउज़र बोलेंगे. और here you can see the different types of web browser. Example are here: Internet Explorer, Netscape, Firefox, Safari, Opera, Linux, Chrome. Okay, these are all the example of web browser. Next is website. Website mainly is a collection of various interrelated pages written in HTML. Each page available on the website is called a web page, and first page of the website is called a home page. दैट मीन्स जो वेबसाइट होता है वो क्या होता है, बहुत सारा वेब पेजेस का कलेक्शन होता है एक वेबसाइट. ओके, और जिसको जो फर्स्ट पेज हम लोग कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करें, जैसे कि गूगल का हो गया, उसका जो फ्रंट पेज होगा उसको हम लोग होम पेज बोलेंगे. नेक्स्ट इज 24 ग्लोबल प्रेजेंस. दैट मीन्स हम लोग कभी भी 24 आवर्स इंटू 7 हम लोग कहीं से भी बैठ के हम लोग नेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, उसको ही हम लोग बोलेंगे 24 आवर्स ग्लोबल प्रेजेंस. इनकेस कस्टमर बेस अराउंड 2 बिलियन पीपल ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अक्रॉस द इंटरनेट
access the internet. Advertisement, promotion and online business through a website can be have a bigger customer base. That means जो अभी करंट पोजीशन है, दिन दिन क्या हो रहा है कि जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, सभी लोग आजकल इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज ट्रेमेंडस कॉस्ट सेविंग। द इंटरनेट इज द चीपेस्ट मोड कम्युनिकेशन टुडे। ए वेबसाइट इज ए लो कॉस्ट बट इफेक्टिव वे टू मार्केट योर बिजनेस। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट करके उस हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, हम लोग का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट इज वेब पेजेस। ये वेब पेजेस से डॉक्यूमेंट टिपिकल रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने पहले बोला है, जो वेब पेजेस होता है वो क्या होता है, HTML के जरिए क्रिएट किया जाता है। वेब पेजेस आर एक्सेस्ड एंड ट्रांसपोर्ट यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP और HTTPS टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर द यूजर of the web pages content. Many such web pages make web pages may be strict or dynamic. A web page may have hyperlink to another website. Okay. नेक्स्ट इज होम पेज, भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया। फीचर्स ऑफ गुड वेब पेजेस, एंड इसको आप लोगों को थोड़ा रीडिंग कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज द मेन कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। So an HTML code is composed of some tags along with the content of the display. A tag is a code HTML command that defines the structure of appearance of the web page. That means जो हम लोग अभी HTML जो इंट्रोडक्शन हम लोग चैप्टर में है, वो मेन थिंग ये है। ओके, जो HTML क्रिएट किया जाता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स के जरिए किया जाता है। ओके, टैग्स मतलब HTML कोड होता है, जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसको हम लोग HTML टैग्स के जरिए कोडिंग करते हैं। एंड HTML टैग्स बिगिन विद लेस देन एंड एंड विद द ग्रेटर देन क्लोज बैक एंगल ब्रैकेट्स। ओके, लेस देन एंड ग्रेटर देन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, लेस देन बी greater than, okay, is an example of HTML tag that causes the text to appear in bold format. हम लोग को जब भी बोल्ड देना होगा तो हम लोग लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में बोल्ड लिखेंगे, इटैलिक करना होगा तो आई लिखेंगे, अंडरलाइन करना होगा तो यू लिखेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज पेयर टैग्स। कौन सा होता है, दिस टैग्स आर अपियर इन पेयर टैग्स। this tag is called the opening tags and the second tag is called the closing tags. That means हम लोग जो टैग को स्टार्ट करेंगे उसको क्लोज भी करना होता है, उसको हम लोग पेयर टैग्स बोलेंगे। जैसे कि बोल्ड, बोल्ड का ये टैग है लेस देन स्टार्ट के बी ग्रेटर देन, इट टेक्स टू बी डिस्प्लेड इन बोल्ड। जब हम लोग ये बोल कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी सेंटेंस हो गया, उसको हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं तो बी टैग हम लोग यूज़ करेंगे, लेस देन बी, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद इसको क्लोज भी करना होगा। ओके, एयर वी कैन सी लेस देन के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है। ओके, फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग टैग हो जाता है। जब भी हम लोग फॉरवर्ड टैग का यूज़ करेंगे उसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलेंगे। और जो भी कोई भी हम लोग टैग यूज़ करने के बाद उसको जब एंड करेंगे उसके बाद सेम टैग देंगे, खाली एक फॉरवर्ड स्लैश देना होता है। ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स मीन्स हेयर यू कैन सी द एग्जांपल बियर टैग्स, जो कि एंड नहीं होता, जो कि एंड टैग नहीं होता। जो टैग हम लोगों ने यूज़ किया है उसको एंड नहीं करना होता, उसको हम लोग सिंगुलर टैग्स बोलेंगे और एम्प्टी टैग्स भी बोल सकते हैं। ओके, हेयर यू कैन सी द एग्जांपल इज हेड स्टार्ट किया हम लोगों ने, हेड, उसके बाद टाइटल दिया, टाइटल को भी हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज किया है, उसके बाद हेडिंग भी क्लोज किया है, हेड स्टार्ट किया, हेडिंग क्लोज किया, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल क्लोज किया। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंगुलर टैग्स, पेयर टैग्स। उसके बाद बॉडी भी स्टार्ट किया है और बॉडी भी क्लोज किया है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इतने यहाँ पे हेड टैग यूज़ किया है, टाइटल टैग यूज़ किया है, बॉडी टैग यूज़ किया है, HTML टैग यूज़ किया है, उसको हम लोग बोलेंगे पेयर टैग्स, क्योंकि इसको स्टार्ट भी करना होता है और एंड भी करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज हेड सेक्शन। हेड सेक्शन, HTML के कोई भी हेड सेक्शन में खाली दो ही टैग यूज होता है, हेड टैग यूज होता है और टाइटल टैग यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी सेक्शन में, दिस सेक्शन इज कंटेन द टैग्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जी, जो भी हम लोग कोई भी कंटेंट जो इस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड हम लोग वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट हम लोग बॉडी के अंदर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज HTML एडिटर्स, बेसिक एडिटर्स
This is editor HTML code has the type नोट सपोर्ट ऑफ सोर्स कोड, फॉर एग्जांपल नोटपैड वन वर्डपैड, हम लोग नोटपैड एंड वर्डपैड से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट एडिटर में नोटपैड प्लस प्लस एंड टेक्स्ट पैड है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका जो एग्जाम्पल है जो है एडोब ड्रीम वीवर है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो कोड लिखेंगे, जब कोडिंग करेंगे तब सजेशन देना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उससे बहुत ही हेल्प होता है। नेक्स्ट इज वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड स्प्रेडशीट पैकेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन एक्सपोर्ट फाइल्स इन HTML फॉर्मेट। उसको भी हम लोग HTML फॉर्मेट के जरिए हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ creating and saving HTML documents. To create a web page require notepad that can be found in Windows. हम लोग सबको पता है कि हम लोगों के कंप्यूटर में नोटपैड रहता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू when you need to create a HTML, they you need to open the notepad first. Okay, so in order to open notepad Windows 7, click on the start button, next all programs, next accessories, then notepad, click on the notepad, your notepad will be open. Okay, then after writing the required course, you can save the document. Click save and click on file, then save. And the most important thing is the file is the save file by adding the extension of .html or .html. Okay, the extension of HTML file is .html or .html. Okay, दोस्तों ये जो है डॉट एच टी एम एल और डॉट एच टी एम एल जो है उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलेंगे एच टी एम एल फाइल का। ओके, नेक्स्ट इज व्यूइंग द वेब पेजेस। इसको आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है। ए वेब पेज कैन बी व्यूड एनी यूजिंग एनी वेब ब्राउज़र। हम लोग जो वेब पेज क्रिएट करेंगे वो आसानी से हम लोग वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज editing a web page. In order to edit an HTML document, right click on the फाइल एंड क्लिक ओपन विद नोटपैड। हम लोगों ने नोटपैड से क्रिएट किया है तो उस फाइल को हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग नोटपैड से ओपन करके उसको एडिट करेंगे। ओके, और हम लोगों ने जब एक्सटेंशन उसको डाल दिया सेव करने के टाइम, जो एक्सटेंशन है उसको अगले हम लोगों ने .html लिख दिया, वो वेब पेज हो गया, वो वेब पेज में ही ओपन होगा। अगर हम लोग उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट नहीं होगा, वो वेब पेज के जरिए ओपन होगा। इसलिए आप लोगों को उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करना होगा, तभी जाके आपका जो वेब पेज है उसको आप लोग एडिट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है हेड टैग्स। देयर आर, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि हेड टैग्स में क्या होता है कि हेड हेड जो टैग है वो आता है और टाइटल जो टैग है वो आता है। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग में मैंने क्या बोला था कि जो होल इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने जो वेबसाइट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उसका जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी टैग्स में आता है। जितना भी सारा कंटेंट हम लोग देंगे वो बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग देंगे। ओके, नेक्स्ट इज heading style. There are mainly 6 heading style are here. Okay, head 1, h1, h2, h3, h4, h5 and h6. Here you can see the view in a web page. हेडिंग वन थोड़ा बड़ा होता है और बोल्ड होता है। ओके, एंड दिस टैग्स ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलर टैग्स, क्योंकि इसको एंड नहीं करना होता। H1 को हम लोगों ने एंड नहीं किया, H2 को भी हम लोगों ने एंड नहीं किया, लेकिन बॉडी को हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया है। सो बॉडी हो गया, क्या हो गया, पेयर टैग्स हो गया। ओके, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होता है, एच आर टैग में बी यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रूल्स एंड लाइन्स। इट इज मेनली यूज्ड एज ए सेपरेट बिटवीन ब्लॉक्स एंड टेक्स्ट। ओके, उसका भी अलाइनमेंट होता है, अलाइन लेफ्ट लाइन, हम लोग किस जगह पे वो लाइन को लाना चाहते हैं। ओके, हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल आर हेयर HTML बॉडी कंप्यूटर साइंस HR। हेयर यू कैन सी the line is horizontal. Okay, here you can see in the picture the alignment left with 200 size 5। हम लोगों को जो साइज है उसको भी हम लोगों को देना होता है। ओके, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल। some portion of the text within a paragraph may also be emphasized by making it appear in the bold face। हम लोग, मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोला था कि हम लोग जब कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी टैग का यूज़ करेंगे, जब इटैलिक को करना है तो आई टैग का यूज़ करेंगे, जब अंडरलाइन को यूज़ करना है तो यू टैग का यूज़ करेंगे। ओके,
नेक्स्ट इज सेंटर टैग। हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर टैग में हम लोग यूज़ किया है दिस टेक्स्ट इज सेंटर अलाइन, और यहाँ पे वेब पेज पे आप लोग देख रहे हैं कि सेंटर में है। जो हम लोगों ने लिखा है दिस टेक्स्ट इज सेंटर अलाइन, सो इसको हम लोगों ने सेंटर में किया है। कैसे किया है? सेंटर टैग यूज़ किया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो लाइन है, जो सेंटेंस लिखा है उसके आगे सेंटर टैग यूज़ किया है, उसके बाद हम लोगों ने सेंटर टैग को भी क्लोज किया है। नेक्स्ट इज फॉन्ट सेटिंग। यू कैन सेट योर पर्टिकुलर फॉन्ट साइज। फॉन्ट मतलब जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं कि हम लोग जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। ओके, उसका जो फेस है, फॉन्ट फेस इज एट्रीब्यूट सिलेक्टेड पर्टिकुलर फॉर्म टू बी सिलेक्टेड। आप लोग कुछ भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज। उसका जो साइज़ है आप लोग कोई भी साइज़ दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है साइज प्लस साइज इज इक्वल टू 2 प्लस मेक्स द फॉन्ट साइज 3 प्लस 2 5 वायर साइज 2 इट्स 1। ओके, और ये जो साइज है दिस साइज में वेरी बिटवीन 1 एंड 7। ओके, 1 एंड 7। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज 3। जो हम लोग HTML में हम लोग जो फॉन्ट साइज जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो HTML में होता है 3। ओके, नेक्स्ट इज कलर। कलर भी आप लोग खुद के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, HTML के पेज अकॉर्डिंग द पेज दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी द फॉन्ट फेस एरियल ब्लैक। जो टेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है? एरियल ब्लैक में लिखा हुआ है। सो फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल ब्लैक, और ये जो एरियल ब्लैक है उसको हम लोग ने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करना मैंडेटरी है। ओके, उसका जो साइज है 5 दिया है, कलर दिया हुआ है रेड। ओके, नेक्स्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला HTML पेज के ऊपर लिख रहे हैं, एक जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, या तो कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 और CO2, उसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे? ओके, फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3, हम लोग को तब क्या करना होगा? सुप लिखना होगा, SUP। ओके, दैट मीन्स सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट भी एक पेयर टैग है, उसको एन भी करना होता है, स्टार्ट भी करना होता है और एन भी करना होता है। जब हम लोग को ये लिखेंगे तब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2x, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट एंड हुआ। क्योंकि हम लोग को जो क्यूब है 3 जो क्यूब होता है उसको हम लोग को ऊपर दिखाना होता है, तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम लोग को जब नीचे दिखाना होता है H2 कहाँ पे है? नीचे है, तो हम लोग को सबस्क्रिप्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, एच लिखने के बाद सबस्क्रिप्ट स्टार्ट 2, उसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड। ओके, उसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे 2 है वो नीचे आ जाएगा, एच के एकदम एकदम साथ में ही नीचे आ जाएगा। ओके, दिस टू कोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोगों के बुक में बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग और भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप लोगों को अच्छी तरह से उस कोडिंग को पढ़ना होगा, बेसिकली लर्न करना होगा। अगर आप लोग अच्छी तरह से बुक को लर्न नहीं करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आंसर पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि द सेकेंड टर्म एग्जाम इज मेनली बेस्ड ऑन MCQ। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन बी लीव लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ? P tag is used leave a line between two paragraphs. Next is BR tag. Next answer is 1I. Next answer is H1, and last answer is right to left. Okay, so these are the answer of the choose the correct answer. Next is true false. The display can be moved to the next line by using BR tag true. The default size of the font size of the display is 12 false 3 मैंने पहले ही डिस्कस किया था। ओके, so next is false, next is false, then true। Okay, and here you can see the fill in the blanks. First fill in the blanks is the sub attribute is required to display the chemical formula of water। मैंने पहले ही बोला था सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, पहले सुपरस्क्रिप्ट बोला था जो कि स्क्वायर रूट ये सब होता है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो नीचे वाला, जैसे कि फॉर्मूला CO2 H2SO4। ओके, नेक्स्ट इज फेस, नेक्स्ट इज सोर्स, नेक्स्ट इज व्यूज, स्नैप, उसके बाद एज टैग। ओके, सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड
I want to tell all of you that please read the chapter very very carefully. If you read the chapter very carefully, then you will answer each and every question in the examination. Okay, so all of you have to read the chapter very very carefully. Okay, so today I am ending my discussion, and all the best for second term examination. So till then, take care, goodbye, and thank you.